Okay, now as the children have decided that they'll sit together for about 10 minutes and then they'll share their ideas. So now let us read the story. And I made up my mind before 2 minutes were over. Now the narrator is saying that he came up with his idea before 2 minutes were over. And I saw the others had, all but Dora. And he could see that all the other children have also come up with the ideas, all except Dora, the eldest sister, who always takes an awful lot of time over everything, because she used to take a lot of time over every small thing. Now I got pins and needles in my leg from sitting still so long. Now the narrator is saying that his legs became numb because of sitting still for very long time. It's not even 2 minutes, and he is saying that he has been sitting for too long. Now, so he is getting that pricking and tingling sensation in his legs. And when it was 7 minutes, Echo cried out, "Oh, it must be more than half an hour." So, as we can see here, the children are all very restless to find a treasure as quickly as they can. So, every minute is like an hour for them. So Oswald spoke first. "I think we might stop people on Blackheath." Blackheath is southeast London. So he's saying that we might stop people on Blackheath with crepe masks. Crepe mask is mask made up of cloth, and horse pistols. You must have seen in the movies cowboys sitting on horses carrying large pistols. So those are horse pistols. And say your money or your life. That we'll cover our face with these crepe masks and we'll carry horse pistols, and then we'll threaten the people like your money or your life. Either you give your money or we'll take away your life. Resistance is useless. We are armed to the teeth. Armed to the teeth means heavily armed with weapons. So he's being very dramatic here, and he's saying that we'll threaten people like this and we'll take away all their money. Now Dora screwed up her nose the way she always does when she's going to talk like the good old sister in the books. Dora, she stands up to say something, and before doing that she screws up her nose. Screws up means जैसे नाक सिकोड़ते हैं ना कुछ बोलने से पहले, तो she did that and said that would be very wrong. और वो सबसे बड़ी बहन है तो वो सबको गलत काम से रोकती है, और वो कहती है कि दैट वुड बी वेरी रॉन्ग, कि वो बहुत गलत होगा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो. इट्स लाइक पिक पॉकेटिंग और टेकिंग पेनीज आउट ऑफ फादर्स ओवरकोट. व्हाट इज पिक पॉकेटिंग? हु इज़ अ पिक पॉकेट? समवन हु स्टील्स योर वॉलेट और योर वैल्यूबल्स फ्रॉम योर पॉकेट. सो अगर हम ऐसा करते हैं तो वील बी बिहेविंग लाइक पिक पॉकेटर्स और टेकिंग पेनीज आउट ऑफ फादर्स ओवरकोट व्हेन इट्स हैंगिंग इन द वॉल इन द हॉल. तो वो कहती है, और इट विल बी लाइक टेकिंग पेनीज. पेनीज आर द कॉइन्स दैट इज यूज्ड इन लंडन. So it will be like taking pennies out of father's overcoat when it's hanging in the hall without his knowledge. I must say I don't think she should have said that, especially before the little ones. और नरेटर कहता है कि मुझे लगता है कि डोरा को छोटे बच्चों के सामने, छोटे भाई बहनों के सामने ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी. पर आई यूज़ टू डू दैट व्हेन आई वाज ओनली 4. जब मैं 4 साल का था तो मैं भी यही काम करता था. मैं भी पापा के ओवरकोट में से कभी कभी 1-2 पेनी निकाल लेता था. बट इट्स वेरी रॉन्ग. इट वॉज एलिस's टर्न टू से. अब एलिस की बारी थी कुछ बोलने की. आई थिंक वी माइट ट्राई द डिवाइनिंग रॉड. और वो कहती है कि हमें डिवाइनिंग रॉड ट्राई करनी चाहिए. एंड वॉट इज़ द डिवाइनिंग रॉड? It's kind of a magical stick which indicates the presence of water or minerals by bending downwards. And so it's kind of a magical rod. I've often read about it. You hold a stick in your hands, and when you come to where there is gold underneath, the stick kicks about, so you know, and you dig. कि उस स्टिक को जब आप अपने हाथ में पकड़ोगे और जहाँ कहीं भी गोल्ड होगा, मतलब अंडरग्राउंड कहीं पर भी गोल्ड होगा, तो वो स्टिक जो है अपने आप आपको बता देगी, कुछ इशारा करेगी, और वहाँ पे आप जब डिग करोगे या खोदोगे तो आपको वहाँ पे गोल्ड मिलेगा. ओह, सेड डोरा सडनली. आई हैव एन आइडिया बट आई विल से लास्ट. डोरा कहती कि हाँ मुझे भी एक आइडिया है, लेकिन मैं लास्ट में बताऊँगी. आई होप देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट द डिवाइनिंग रॉड. एनी हाउ वील ट्राई द अदर वेज फर्स्ट, सेड डोरा. वो कहती है कि डिवाइनिंग रॉड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम और भी जो आइडियाज़ हैं उनको पहले ट्राई करेंगे. नाउ एचओ. अब किसकी टर्न है? एचओ की. द यंगेस्ट
ब्रदर, लेट्स बी बैंडिट्स। और एचओ जो है वो कहता है कि चलो हम डाकू बन जाते हैं। आई डेयर से इट्स रॉन्ग बट इट वुड बी फन प्रिटेंडिंग। वो कहता है आई नो दैट इट विल बी रॉन्ग बट इट विल बी फन टू डू दैट। मतलब अगर हम प्रिटेंड करते हैं, हम ऐसे दिखाएंगे कि हम डाकू हैं, एक्चुअली वी विल नॉट बी बिहेविंग लाइक बैंडिट्स बट वी विल बी प्रिटेंडिंग लाइक देम। आई एम श्योर इट्स रॉन्ग सेड डोरा। डोरा फिर कहती है कि आई एम श्योर इट्स रॉन्ग, ये बहुत गलत होगा। एंड डिकी सेड शी थॉट एवरीथिंग रॉन्ग। और डिकी कहता है तुम्हें तो हर चीज़ गलत लगती है। शी सेड शी डिडंट। और वो अपने आप को डिफेंड करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे हर बात गलत नहीं लगती, लेकिन जो गलत है मैं उसको गलत ही बोलती हूँ। एंड डिकी वॉज वेरी डिसएग्रीएबल। फिर इन दोनों के बीच में आपस में अनबन हो जाती है इस बात को लेके। सो ऑसवर्ल्ड हैड टू मेक पीस। और ऑसवर्ल्ड आके बीच में दोनों के सुलह करवाता है। एंड ही सेड लेट्स हियर व्हाट नोएल्स आइडिया इज़। वो कहता है कि चलो चलो छोड़ो, हम सुनते हैं नोएल के पास क्या आइडिया है। आई किक नोएल अंडर द टेबल टू मेक हिम हरी अप। और मैं उसको नोएल को ऐसे किक किया हल्का सा, ताकि उसको मैंने बोला कि थोड़ा जल्दी करो। एंड देन ही सेड ही डिडंट थिंक ही वांटेड टू प्ले एनी मोर। और नोएल कहता है कि मुझे अब और नहीं खेलना, दैट्स द वर्स्ट ऑफ इट, द अदर्स आर सो जॉली रेडी टू क्वारल। और जो नरेटर है वो कहता है कि बाकी सब इतना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड वाई आर यू नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आई टोल्ड नोएल नॉट टू बी अ स्निवलिंग पिग। और मैं उसको कहता हूँ कि तुम एक पिग की तरह, जैसे पिग वाइन करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, रोता है हर चीज़ में, वैसे तुम मत करो। एंड एट लास्ट ही सेड ही हैड नॉट मेड अप हिज माइंड वेदर ही वुड प्रिंट हिज पोइट्री इन अ बुक एंड सेल इट और फाइंड अ प्रिंसेस एंड मैरी हर। कि मैं अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाया हूँ कि मैं अपनी पोइट्री को प्रिंट करवाऊँगा एक बुक के फॉर्म में और उसको सेल करूँगा, या मैं एक प्रिंसेस को ढूंढ के उससे शादी करूँगा। Whichever it is, he added, none of you shall want for anything, though Oswald did kick me and say I was a snivelling pig. अब वो कहता है कि चाहे जो भी हो, इसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑसवर्ल्ड ने मुझे किक किया और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं एक स्निवलिंग पिग हूँ। I didn't, said Oswald. I told you not to be one. अब ऑसवर्ल्ड कहता है कि मैंने तुम्हें स्निवलिंग पिग नहीं कहा, मैंने ये कहा कि तुम स्निवलिंग पिग की तरह मत बिहेव करो। एंड एलिस एक्सप्लेन टू हिम दैट इट वॉज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ वॉट ही थॉट, सो अग्रीड टू ड्रॉप इट। तो एलिस ने उसको समझाया कि हाँ, उसने तुम्हें स्निवलिंग पिग नहीं कहा, उसने तो बल्कि ऑपोजिट उसका बोला था, नॉट टू बी वन। सो फाइनली वो अग्री कर जाता है और ये इशू यहीं ड्रॉप हो जाता है। देन डिकी स्पोक, यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव नोटिस्ड द एडवर्टीजमेंट्स इन द पेपर्स telling you that ladies and gentlemen can easily earn £2 a week in their spare time. अब जो डिकी है वो अपना आइडिया शेयर करता है कि तुम लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे पेपर में, टेलिंग यू दैट एवरीवन कैन ईजिली अर्न £2 a week in their spare time, कि हम अपने खाली टाइम में £2 हर एक वीक में कमा सकते हैं। नाउ दैट वी डोंट गो टू स्कूल, ऑल आवर टाइम इज़ स्पेयर टाइम, कि अब हम स्कूल तो जाते नहीं हैं, तो हमारा सारा टाइम अब स्पेयर टाइम ही है। स्पेयर टाइम मीन्स खाली टाइम है। सो आई थिंक वी कुड ईजिली अर्न £20 a week ईच, कि हमें से हर कोई अब £20 हर एक वीक में कमा सकता है। एंड आई हैव अनदर आइडिया बट आई थिंक अबाउट इट बिफोर आई से। मेरे पास एक और आइडिया भी है, लेकिन मैं थोड़ा सोच लूँ उसके बारे में बिफोर आई शेयर इट विद यू। देन डोरा जम्प्ड अप ड्रॉपिंग द स्टॉकिंग एंड द थिम्बल। थिम्बल क्या होता है? इट्स अ कैप वर्न ऑन द thumb to protect it from the needle when while you are sewing or stitching something. So Dora जो है एकदम से she jumps up and she drops the stocking and the thimble and said let's try my way now, let's dig for treasure. और वो कहती है कि मेरे पास एक और आइडिया है कि हम क्या करते हैं, हम डिग करना शुरू करते हैं, हम खोदना शुरू करते हैं ज़मीन को, and we'll look for treasure. नॉट एनी टायरसम डिवाइनिंग रॉड, कि हम वो जो डिवाइनिंग रॉड है वो बड़ी टायरसम होती है, बहुत ज़्यादा टायरिंग होगा उसको डिवाइनिंग रॉड को लेके हर जगह घूमना, बट जस्ट प्लेन डिगिंग, कि सिर्फ हमें डिग करना है, हमें सिर्फ खोदना है ज़मीन को, एंड वील फाइंड आवर ट्रेजर। पीपल हु डिग फॉर ट्रेजर ऑलवेज फाइंड इट। और मैंने यही सुना है कि लोग जो डिग करते हैं ट्रेजर के लिए वो हमेशा उस ट्रेजर को ढूंढ लेते हैं। एंड देन वी शैल बी रिच एंड वी नीडंट ट्राई योर वेज एट ऑल। और फिर हम रिच हो जाएंगे और फिर हमें तुम्हारे जितने भी तुम लोगों ने अभी तक वेज बताए हैं उनको ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सम ऑफ देम आर रादर डिफ़िकल्ट, और कुछ उनमें से बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं जो तुम लोगों ने अपने अपने तरीके बताए हैं। एंड आई एम सर्टन सम ऑफ देम आर रॉन्ग,
और कुछ जो तरीके हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, एंड वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट रॉन्ग थिंग्स, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गलत चीज़ें, बट वी टोल्ड हर टू शट अप एंड कम ऑन एंड शी डिड, और बाकी सारे बच्चे जो हैं उसको चुप करा देते हैं कि ओके ओके अब और लेक्चर मत दो, एंड शी डिड, तो वो चुप हो जाती है. I couldn't help wondering as we went down to the garden why father had never thought of digging there. और मैं ये सोच रहा हूँ, wondering means सोचना, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हम गार्डन में जाते हैं, वी वेंट डाउन टू द गार्डन, वहाँ जाके मैं ये सोचता हूँ कि वाई फादर हैड नेवर थॉट ऑफ डिगिंग, कि हमारे फादर ने अभी तक क्यों नहीं सोचा इस बारे में कि लेट्स डिग इट आउट, कि हम अपनी जो गार्डन है उसको डिग करते हैं, शायद वहाँ पे ट्रेजर मिल जाए. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हिज बीस्टली ऑफिस एवरी डे, और डेली वो अपने जो उनका अनप्लेजेंट सा ऑफिस है वहाँ पे वो डेली जाते हैं, इंस्टेड ऑफ इट ही शुड हैव स्टार्टेड डिगिंग द गार्डन इटसेल्फ एंड लुक्ड फॉर ट्रेजर. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इन लोगों की अपनी इमेजिनेशन है, एंड दे आर होपिंग एंड प्रेइंग दैट वन डे दे विल बी एबल टू सीक सम ट्रेजर, कि वो कोई गड़ा हुआ खजाना उनको मिल जाएगा, कोई छुपा हुआ खजाना उनको मिल जाएगा, और जिससे कि वो वापस पहले जैसे रिच हो जाएंगे, एंड दे विल बी एबल टू गो टू स्कूल, दे विल बी एबल टू पे देयर फीस, एंड दे विल बी एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स एंड बाय न्यू टॉयज़ फॉर देमसेल्व्स. तो ये पूरी स्टोरी जो है उन बच्चों के बारे में है बेटा, जो दे आर लुकिंग फॉर ट्रेजर टू बिकम रिच क्विकली. ओके, so I hope you have understood the story.